آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت پر آج شہر میں منعقد کیا گیا تعزیتی اجلاس۔ سبھی مسالک کے علماء کرام اور دانشوران قوم نے کیا حاضرین سے خطاب۔ اسٹینڈنگ کمیٹی اور دیگر ذیلی کمیٹیوں کے اراکین کے انتخاب کے لیے جنرل باڈی میٹنگ منعقد۔ گروپ لیڈرز کے سفارش کردہ کارپوریٹرز کی گئی نامزدگی۔ اورنگ آباد ضلع میں چھترپتی شیواجی مہاراج راجیہ سبھا سمادھان شبیر کا کر دیا گیا آغاز۔ سرکل سطح پر منعقد کیے جائیں گے 84 کیمپس۔ شہریان سے استفادہ اٹھانے کی ضلع کلکٹر نے کی اپیل۔ اور ڈپٹی میونسپل کمشنر سویتا سونونے کی جانب سے MIM کے چند کارپوریٹرز اور دیگر عوام کے خلاف سرکاری کاموں میں رکاوٹ کے الزام میں داخل کردہ شکایت پر میونسپل کمشنر اور اپوزیشن لیڈر آمنے سامنے۔ کارروائی ہو کر رہے گی، میونسپل کمشنر کا دعویٰ۔ خبریں تفصیل سے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت پر تمام مسلک کے ذمہ داران کے اشتراک سے ایک تعزیتی اجتماع اولیاء مسجد روضہ باغ میں منعقد کیا گیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے پس منظر میں ایک مشترکہ تعزیتی اجتماع آج مسجد اولیاء روضہ باغ میں منعقد کیا گیا۔ یہ اجتماع مسلم نمائندہ کونسل، انجمن خادم المعصومین، جماعت اسلامی ہند، وحدت اسلامی ہند، تنظیم ائمہ مساجد اورنگ آباد، تحفظ اوقاف فورم، اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن، مسلم عوامی کمیٹی اورنگ آباد، مائنڈز ان موشن فاؤنڈیشن، شیعہ سنی یونین فورم، حضرت مبشم سوشل اینڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن، بام سیف، باب العلم لائبریری اور بھارت مکتی مورچہ کے اشتراک سے رکھا گیا تھا، جہاں علماء کرام، ائمہ مساجد، سماجی و ملی تنظیموں کے ذمہ داران نے آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت پر سخت افسوس اور رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل اور امریکہ کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ اس معاملے میں علماء کرام اور دانشوران قوم نے حاضرین کی مختلف پہلوؤں سے رہنمائی کی۔ تعزیتی اجتماع میں شہریان بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ شہید امام آیت اللہ خامنائی صاحب، ان کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، پڑھا جائے، اور ان کی جو سپیچز ہیں جو ریگولرلی وہ تیار کرتے ہیں خامنائی.ir پہ اویلیبل ہے، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے جو اہم موضوع پہ جس پہ انہوں نے فوکس کیا، جس پہ انہوں نے اکثر اور بیشتر باتیں کی، وہ کون سے تھے، اور اس موضوع کے تحت ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ رہبر معظم کے اگر کلمات کی طرف جایا جائے، ان کے اگر کلمات کی طرف جایا جائے، کچھ چیزیں جو ہے وہ بہت کامن ہیں اور اکثر ملتی ہے، ہر سپیچ کے اندر کچھ نہ کچھ باتیں اس پوائنٹس کے حوالے سے ملتی ہے۔ ایک جو ہے وہ ہے ایمان، اللہ کے اوپر ایمان، توحید کے اوپر ایمان۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شہید کا خون انسپائریشن ہے ہمارے لیے کہ اس نے اپنی انت تک کوشش کرتے ہوئے اللہ کے سپرد اپنی جان اپنی پیش کر دی۔ تو جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے دین سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کو اس زمین پر، اس خطے پر نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو باطل طاقتیں اسی طرح ان کا کھلا خرما کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے جس اسلامی قائد کا انہوں نے نشانہ بنایا، تو ان کی دوردرشی کا حال یہ ہے کہ 7 جنریشن تک انہوں نے اپنے بعد کی قیادت کو نامزد کیا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا انسپائریشن کا
इस बात से मिलता है हमारे को। तो जब जो हिसाब होता है वो करबला से हमें समझ में आता है। ये नहीं है कि कौन मारा गया, कौन बच गया, किसके ज्यादा थे, किसके कम थे, किसके थे, कौन झुका और कौन खड़ा रहा। तो मुकावमत इस्लामी की बड़ी बात यह है कि आज भी वो झुकी नहीं है, आज भी वो बाकी है। नुकसानात हुए हैं लेकिन आज भी वो डटे हुए हैं और शहादतों पे शहादत दिए जा रहे हैं। और हमारी ये मानना है कि शहादत से हम लोग कमजोर नहीं होते हैं, शहादत से हम लोग मजबूत हो जाते हैं। शहादत जितनी भी होगी उससे हम लोग मजबूत होते जाएंगे और करीब होते जाएंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से आज की जो इतनी बड़ी शहादत दी गई, उससे दुश्मन जो है वो आज दरस रहा है, दुश्मन जो आज घबरा रहा है। लेकिन वो मुल्क की बात दौर संभाले हुए थे और हर वक्त एक ही उनके जबान पे रहता था कि हम शहीद हो जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। हर वक्त जब भी मैंने उनकी स्पीचेस सुना हो, शहादत का बड़ा जिक्र करते थे। यकीनन अभी मौलाना ने कहा कि जितने दुनिया में इंसान आए हैं और आएंगे तमाम लोग चले जाएंगे, लेकिन कहते हैं ना कि मौत उसी की जिसे ज़माना याद रखे। और इन्होंने ऐसी मौत पाई कि हम कुछ मतलब रोसत भी नहीं भी बोल सकते। वो आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे। तो ऐसे लोग जिन्होंने हमारे लिए पैसे देकर गया, तो हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम इसके अंदर छुपा हुआ है कि एक तरफ बातिल और एक तरफ हक की जो जंग है, इसके अंदर हम लोग कहाँ खड़े हैं। हमको देखना है कि बातिल ताकतें लगातार जो ऐसे जबरदस्त लोग हमारे अंदर पैदा होते हैं जो इनकलाब बर्पा करने की ताकत रखते हैं और इनकलाब बर्पा करते हैं, तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन वो नहीं समझते कि एक आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब के जाने के बाद इंशाअल्लाह हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों आयतुल्लाह ख़ामेनी इस दुनिया में आएंगे इंशाअल्लाह। जालना शहर में ट्रैफिक पुलिस ब्रांच की जानिब से टू व्हीलर सवारों को हेलमेट पहनना लाजमी करार दिया गया है, जिस पर अमल आवरी के लिए शहर में खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिस पर मारूफ सोशल वर्कर धन सिंह सूर्यवंशी ने सख्त एतराज़ जताते हुए कहा कि पहले इंतज़ामिया शहर के खस्ता हाल रास्तों की मरम्मत करवाए। समाजी कारकुन धन सिंह सूर्यवंशी का कहना है कि जालना शहर की खस्ता हाल और गढ़ों से भरी सड़कें, तंग रास्ते और ट्रैफिक निज़ाम की खामियां भी हादसात की बड़ी वजूहात हैं। इसलिए सिर्फ हेलमेट लाजिम करना मसले का मुकम्मल हल नहीं है, बल्कि बुनियादी सहूलतों को भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हेलमेट की लाजमी शर्त पर एतराज़ ज़ाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि हेलमेट पहनने से गाड़ी चलाते वक्त इर्द गिर्द की आवाज़ें कम सुनाई देती हैं, ख़ास तौर पर भीड़ भाड़ वाली मार्केट्स और तंग सड़कों में इससे ख़तरा बढ़ सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि शहर में रोज़मर्रा छोटे फासले के लिए गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट साथ रखना भी कई लोगों के लिए मुश्किल बन जाता है। इसलिए हेलमेट की लाजमी शर्त कौमी और रियासती शहरों पर सख्ती से नाफिज की जाए, मगर शहर के अंदरूनी रास्तों पर उसे लाजिम न किया जाए। हे बघा, मुळामध्ये साहेब असा विषय आहे की जालना शहर हे खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्रात सर्वात मोठं खेड आहे। इथे ना रस्त्यांची व्यवस्था व्यवस्थित आहे, जे रस्ते आहेत ते खड्डेयुक्त रस्ते आहेत आणि इथं खऱ्या अर्थानं जे वाहतुकीला वळण पाहिजे ते पूर्णपणे वळण नाहीये आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही हेल्मेट सक्ती करताय। ती हेल्मेट सक्ती म्हणजे एक प्रकारची दंडेशी झालेली आहे। या ठिकाणी ते विषय लागू पडणार नाही, तुम्ही जनतेला विठीस धरतात। याचा आम्ही एक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून जालना शहरात प्रत्येक मुद्द्यावर आम्ही बोलत आलेलो आहोत आणि जे सत्य मुद्दे आहेत तुम्ही हेल्मेट सक्ती करा ना। तुम्ही राज्य महामार्ग असेल, राष्ट्रीय महामार्ग असेल, तिथं आवश्यक केलीच पाहिजे, हेल्मेट सक्ती आवश्यक आहे, पण नको त्या ठिकाणी हेल्मेट सक्ती करायचं आणि जनतेला विठीस धरायचं, याचा आम्ही विरोध करतोय। बीजेपी ने रियासत महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, लेकिन इस फहरिस्त में साबिक मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ का नाम शामिल नहीं है, जिस पर उनके हामियों में सख्त नाराज़गी पाई जा रही है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी डॉक्टर भागवत कराड़ को मौका न मिलने पर उनके हामियों में नाराज़गी पाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस फहरिस्त में मरकज़ी वज़ीर रामदास आठवले, बीजेपी के रहनुमा विनोद तावड़े,
माया चिंतामन अनोते और रामराव वड़कुते के नाम शामिल हैं। बीजेपी की जानिब से समाजी तवाज़ुन बरकरार रखते हुए इत्तेहादी जमातों को भी मौका देने की कोशिश नज़र आ रही है। ताहम इस फहरिस्त में साबिक़ मरकज़ी वज़ीर ममलकत बराए ख़जाना डॉक्टर भागवत कराड़ को शामिल न किए जाने से सियासी हलक़ों में बहस तेज़ हो गई है। ख़ास तौर पर औरंगाबाद से उनके नाम की ज़बरदस्त चर्चा जारी थी। राज्यसभा इंतखाबात के लिए नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख करीब आने के दरमियान बीजेपी ने ये 4 नामों का ऐलान किया है। गुज़िश्ता चंद दिनों से सियासी हलक़ों में ये चर्चे थे कि डॉक्टर भागवत कराड़ को राज्यसभा भेजा जा सकता है, मगर पार्टी ने दीगर 4 नामों पर मोहर लगा दी, जिसके बायस कराड़ के हामियों को बड़ा झटका लगा है। डॉक्टर भागवत कराड़ कई बरसों से बीजेपी में सरगर्म हैं और तवील अरसे से पार्टी के साथ सियासत करते आ रहे हैं। घरानेशाही के ख़िलाफ़ होने की वजह से उन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में अपने बेटे को भी पीछे हटने पर मजबूर किया था। इसी तरह 2024 के लोकसभा इंतखाबात में औरंगाबाद हलके से उन्हें बीजेपी की जानिब से उम्मीदवारी मिलने के चर्चे जारी थे, मगर ये नशिस्त शिवसेना के हिस्से में चली गई, जिसके सबब उन्हें उस वक्त भी दस्तबरदार होना पड़ा था। इसीलिए उम्मीद की जा रही थी कि इस बार उन्हें राज्यसभा के लिए मुंतखब किया जाएगा, मगर बीजेपी ने मुख्तलिफ 4 नामों का ऐलान करके उन्हें इस मौके से महरूम कर दिया। अब आइंदा दिनों में मराठवाड़ा में बीजेपी की सियासत पर इस फैसले के क्या असरात पड़ते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राज्यसभा के लिए बीजेपी ने हिंगोली के साबिक़ एमएलए रामराव वड़कुते को उम्मीदवारी दी है, जिस पर हिंगोली की आवाम ने जश्न मनाया। बीजेपी की जानिब से आज राज्यसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इस फहरिस्त में हिंगोली के साबिक़ रुकन असेंबली और धनगर समाज के लीडर रामराव जी वड़कुते को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। उनकी उम्मीदवारी का ऐलान होते ही हिंगोली में बीजेपी कारकुनान ने गांधी चौक पर जमा होकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। इस मौके पर बीजेपी के ज़िला सदर गजानन घुगे, ओबीसी युवा मोर्चे के ज़िला सदर शशिकांत वड़कुते समेत बीजेपी के कई कारकुनान मौजूद थे। या ठिकाणी हिंगोली जिल्ह्याला या ठिकाणी मोठं नेतृत्व करण्याची संधी या ठिकाणी वडकुते साहेबांच्या माध्यमातून सर्वसामान्य कुटुंबातला एक कार्यकर्ता म्हणून या ठिकाणी संधी दिली आणि भारतीय जनता पार्टीच्या या ठिकाणी हिंगोली जिल्ह्यामध्ये येणाऱ्या काळामध्ये निश्चित भारतीय जनता पार्टीचं नाव देशाच्या नकाशावर राज्यसभेचं पहिलं नाव या ठिकाणी आपल्या राज्यसभेच्या नंतर गेलं असेल। त्या ठिकाणी आमच्या रामराव वडकुते साहेब भाजपच्या वतीनं राज्यसभेचे उमेदवार म्हणून या ठिकाणी गेलेले आहेत। म्हणून आमच्या हिंगोली जिल्ह्याच्या वतीनं वडकुते साहेबाला पुढे आमच्या सर्व 4ही उमेदवारांना आपण या ठिकाणी हार्दिक शुभेच्छा देतो, अभिनंदन करतो आणि येणाऱ्या काळात निश्चितच हिंगोली जिल्ह्याचा कायापालट वडकुते साहेबांच्या हाताने हिंगोली जिल्ह्याचे जे केंद्राचे प्रश्न आहेत ते सोडवण्याच्या ठिकाणी राहणार नाही। स्टैंडिंग कमेटी और दीगर ज़ैली कमेटियों के अराकीन की नामजदगी के लिए आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जनरल बॉडी मीटिंग मेयर समीर राजूरकर की सदारत में मुनक़िद की गई। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के लिए 16 मेंबरान की नामजदगी और दीगर ज़ैली कमेटियों के मेंबरान की नामजदगी के लिए आज मेयर समीर राजूरकर की सदारत में खुसूसी जनरल बॉडी मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मीटिंग में मेयर ने तमाम सियासी जमातों के ग्रुप लीडर्स से कहा कि वो अपनी अपनी सियासी जमातों के लिए कारपोरेटर्स के नामों का लिफाफा उन्हें पेश करें और उसके बाद उन्हें जो लिफाफे मौसूल हुए उसके मुताबिक उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के लिए बीजेपी के ब्लॉक 24 ब की कारपोरेटर कमला रामचंद्र नरोटे, ब्लॉक 2 डी की कारपोरेटर राज गौरव हरिदास वानखेड़े, 21 डी के सुरेंद्र मानिकराव कुलकर्णी, 25 डी के रवि साहेबराव कावड़े, अनिल श्रीकृष्ण मकरिये, 20 बी की अर्चना शैलेंद्र नीलकंठ, 11 बी की माधुरी मिलिंद देशमुख अदवंत और 26 बी के अप्पा साहेब विनायक राव हिवाड़े के अलावा एमआईएम की जानिब से दिए गए लिफाफे के मुताबिक ब्लॉक नंबर 28 बी के कारपोरेटर खान अब्दुल मतीन, ब्लॉक 6 डी के कारपोरेटर मेराज खान जलील खान, ब्लॉक 1 डी से के कारपोरेटर पठान मजहर पठान अयूब, ब्लॉक 14 सी के कारपोरेटर खान अलमास खानम अमजद और शिवसेना शिंदे ग्रुप की जानिब से
श्वेता सुमित त्रिवेदी, राजू मगन सिंह राजपूत, शिवसेना से सचिन सूर्यकांत खैरे और वंचित बहुजन आघाड़ी के अमित भुईगढ़ को स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर की हैसियत से नामजद करने का ऐलान किया। इसी तरह दीगर झैली कमेटियों के लिए भी तमाम सियासी जमातों के ग्रुप लीडर्स की जानिब से अपने कारपोरेटर्स के नामों के लिफाफे मेयर को पेश किए गए और फिर उन्होंने वो लिफाफे खोलकर उनके नामों का ऐलान मुताल्लिका झैली कमेटी के मेंबर की हैसियत से किया। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सदस्य संख्या 1 प्रभाग क्रमांक 25 ब वैशाली रामेश्वर कोरडे। विषय क्रमांक 4 मंजूर। विषय क्रमांक 5 नगर सचिवांनी विषय क्रमांक 5 सांगा। विषय क्रमांक 5 महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 30(1) आणि कलम 31 आणि सभा कामकाज नियमावली जादा नियम अनिल श्री किशन मकरिये 20 ब सौ अर्चना शैलेंद्र निळकंठ 11 ब सौ माधुरी मिलिंद देशमुख अधवंत आणि 26 ब श्री अप्पासाहेब विनायकराव हिवाळे। 8 सदस्य स्थायी समितीचे भारतीय जनता पार्टीच्या गटाकडे होते। 8 सदस्यांचे नाव आलेले। ऑल इंडिया मजलिस एतादुल मुसलमीन 28 ब खान अब्दुल मतीन 6 ड मेराज खान जलील खान 1 ड पठान मजहर पठान अयूब 14 क खान अलमास खानम अमजद। 4 सदस्य ऑल इंडिया मजलिस एतादुल मुसलमीन। शिवसेना गटनेता किशोर बाबुराव नागरे 13 क सौ श्वेता सुमित त्रिवेदी 18 ड राजू मगन सिंह राजपूत 2 सदस्य। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे 15 अ सचिन सूर्यकांत खैरे। लोकसेवा विकास आघाडी गटनेते अफसर खान 3 अ श्री अमित भुईगढ़। नगर सचिव या स्थायी समिती संपल्यानंतर विषय क्रमांक 3 मंजूर। विषय क्रमांक 4 प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी के बकाए वसूल करने के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी अदा करने में टाल मटोल करने वालों की प्रॉपर्टीज़ जब्त की जा रही हैं। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर एडिशनल कमिश्नर कल्पिता पिंपड़े और डिप्टी कमिश्नर विकास नवाले की रहनुमाई में असिस्टेंट कमिश्नर जोन 2 रमेश मोरे के अहकामात पर टैक्स सुपरिटेंडेंट महानौर और टीम के सरबराह रोहित चौहान के साथ अलीमुद्दीन, राजू राठौड़, संजय गवाई, अरुण बंसोड़े, शेख अनीस, योगेश मगरे और केवल पाइकड़ेंत पर मुश्तमिल टीम ने गुज़िश्ता रोज़ कार्रवाई अंजाम दी। इस कार्रवाई के दौरान रामानंद शर्मा के सिंगापुर कॉम्प्लेक्स शॉप नंबर 4 में वाक़े एक तिजारती जायदाद को 1,06,497 रुपयों का टैक्स अदा न करने की वजह से सील कर दी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि टैक्स बकाया जात की वसूली के लिए आइंदा भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, लिहाजा शहरियान वक्त मुकर्ररा पर अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी अदा कर दें। ज़िला परिषद सदर का इंतखाब करने के लिए आइंदा 18 मार्च को ज़िला कलेक्टर ऑफिस में ज़िला परिषद के नौमुंतखबा अराकीन का खुसूसी इजलास मुनक़िद किया जाएगा। ये इत्तला मुतल्लिक़ा शोबे से मौसूल हुई है। वाज़ेह रहे कि औरंगाबाद ज़िला परिषद के सदर ओहदे के इंतखाबी अमल के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इसी ज़िमन में 18 मार्च को एडिशनल ज़िला कलेक्टर की सदारत में खुसूसी जनरल बॉडी मीटिंग मुनक़िद की जाएगी। इजलास से पहले ख्वाहिशमंद अराकीन से नामजदगी फॉर्म्स कबूल किए जाएंगे और तजवीज़ कुनिंदा व तायद कुनिंदा की तकमील के बाद उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दी जाएगी। ज़िला परिषद के मौजूदा सियासी हालात के बास इस इंतखाब पर सबकी नज़रें मरकूज़ हैं। मुख्तलिफ़ ग्रुप्स की जानिब से अपने अपने उम्मीदवारों के हक़ में सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और आइंदा चंद दिनों में सियासी सरगर्मियों से मज़ीद तेज़ी आने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अक्सरियत हासिल करने के लिए ग्रोहबंदी की चहमगोइयाँ भी सियासी हलकों में ज़ोर पकड़ रही हैं। वक्फ़े के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। एएमसी के इंक्रोचमेंट कंट्रोलिंग ऑफिसर संतोष बाहुले और डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर सविता सोनोने की हिदायत पर गुज़िश्ता दिनों शाहगंज इलाके में हरे भरे दरख्तों पर बुलडोज़र चलाए गए, लिहाजा उनके ख़िलाफ़
मुतल्लिक़ा दफ़ात के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ये मतालबा अपोजिशन लीडर अब्दुस्समीर अब्दुस्साजिद ने पुलिस कमिश्नर से किया है। इस ज़िमन में एक मकतूब उन्हें रवाना किया गया। इस ज़िमन में अपोजिशन लीडर समीर साजिद ने पुलिस कमिश्नर औरंगाबाद को एक मकतूब रवाना किया है। अपने ख़त में उन्होंने कहा है कि 27 फरवरी 2026 को शाहगंज इलाक़े में मज़कूरा अफसरान ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए ज़रूरी इजाज़त हासिल किए बग़ैर और क़ानूनी तरीक़ेकार मुकम्मल किए बग़ैर वहाँ मौजूद दरख्तों की कटाई करवाई, जो एक संगीन मामला है। मकतूब में मज़ीद कहा गया है कि ये इक़दाम माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के क़ानून, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, महाराष्ट्र शहरी इलाक़ा दरख्त तहफ़्फ़ुज़ व फ़रोग़ क़ानून और ताज़ीरात हिंद की मुतल्लिक़ा दफ़ात की खिलाफ वर्जी के ज़मरे में आता है। क़वानीन के मुताबिक दरख्तों की कटाई से पहले मुतल्लिक़ा दरख्त अथॉरिटी से पेशगी इजाज़त हासिल करना लाजमी होता है। ताहम बग़ैर इजाज़त की गई ये कार्रवाई गैर क़ानूनी और काबिल सज़ा है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े से माहौलियात को नुकसान पहुँचा है और शहरियों में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। समीर साजिद ने अपने मकतूब में मुतालबा किया कि इस मामले की फौरी और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की जाए और मुतल्लिक़ा अफसरान संतोष बाहुले और सविता सोनवने के ख़िलाफ़ महाराष्ट्र शहरी इलाक़ा दरख्त तहफ़्फ़ुज़ व फ़रोग़ क़ानून, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के क़ानून और ताज़ीरात हिंद की काबिल इतलाक़ दफ़ात के तहत मुक़दमा दर्ज किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि तहक़ीक़ात मुकम्मल होने तक मज़कूरा अफसरान को उनके ओहदों से हटा दिया जाए। औरंगाबाद ज़िले में छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व समाधान शिविर का पहला मरहला शुरू कर दिया गया है। ये इत्तला ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि इस ज़िमन में इंतज़ामिया की जानिब से सर्कल सतह पर 84 कैंप मुनक़िद किए जा रहे हैं। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि ये कैंप 7 से 14 मार्च और 10 से 17 अप्रैल तक सर्कल सतह पर, जबकि 8 से 15 मई के दरमियान म्यूनिसिपल सतह पर मुनक़िद किए जाएंगे। ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने बताया कि महकमे महसूलात को मज़ीद अवाम दोस्त बनाने और देही इलाक़ों में शहरियों, किसानों, तलबा और ख़वातीन के रोज़मर्रा के मसाइल के हल के लिए हुकूमत ने छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व मुहिम मरहला अव्वल शुरू करने का फ़ैसला किया है, जिसके तहत औरंगाबाद ज़िले में मुहिम के इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि इस मुहिम के तहत ज़िले के 9 ताल्लुकात, 84 सर्कल, 500 सजा और 1369 देहात शामिल होंगे और मजमूई तौर पर 84 कैंप मुनक़िद किए जाएंगे। इन कैंपों में ज़ेरे इल्तिवा लैंड रिकॉर्ड में तब्दीलियाँ, फेरफार, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, 7/12 इंदराजात की इस्लाह, महसूलात क़वानीन से मुतालिक आगाही और निफास, पानंद रास्ते, मुख्तलिफ सरकारी सर्टिफिकेट्स की तकसीम, टुकड़ा बंदी क़वानीन और समाजी व माशी इमदादी स्कीमों के फ़वाइद की मंजूरी जैसे कई अहम खिदमात फराहम की जाएंगी। ज़िला कलेक्टर दीप स्वामी ने शहरियों से अपील की है कि वो इस मुहिम से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। महाराष्ट्र शासनाने 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी एक शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे, ज्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावानं राजस्व अभियान घेऊन समाधान शिबिर आपल्या प्रत्येक मंडळ अधिकाऱ्यांच्या मुख्यालयी घेण्यासंदर्भात निर्देश दिलेले आहेत आणि त्या अनुषंगानं छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील 84 मंडळाधिकारी मुख्यालयामध्ये 7 मार्चपासून हे समाधान शिबिर घेण्यात येणार आहे आणि त्यामध्ये महसूल विभागाशी संबंधित जे प्रलंबित प्रश्न आहेत ते सर्व त्या ठिकाणी निकाली काढण्यात येणार आहेत। त्यामध्ये पानंद रस्त्याचा विषय आहे, प्रलंबित फेरफार आहेत, कमी जास्त पत्रक आहेत, भूसंपादन झाल्यानंतर सुद्धा शासकीय विभागाचे नाव 7/12वर लागले नसतील तर ते नावं लावायचे आहेत। आपल्या कायदेशीर प्रक्रियेतून जे प्रमाणपत्र लोकांना मिळत असतात ते सर्व प्रमाणपत्र त्या ठिकाणी दिले जाणार आहेत। लोकसेवा हक्क अधिनियमाअंतर्गत ज्या सेवा सेतू केंद्रामार्फत पुरवल्या जातात त्यासुद्धा त्या मंडळाधिकारी मुख्यालयामध्ये दिले जाणार आहेत। आकर्षकची अट शासनाने रद्द केलेली आहे, परंतु त्याचा अधिभार मूल्य जो आहे त्याची निश्चिती या कॅम्पच्या माध्यमातून केली जाणार आहे आणि विविध जनजागरणसुद्धा या कॅम्पच्या माध्यमातून करून जनसामान्य नागरिकांचं जीवन सुसह्य कसं होईल यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे
आणि या अभियानासाठी शासन स्तरावरून मोठ्या प्रमाणामध्ये पाठपुरावा सुरू आहे, मोठ्या प्रमाणामध्ये मार्गदर्शन आणि सहकार्य सुरू आहे. त्यामुळे आपल्या जिल्ह्यामध्ये 7 मार्चपासून या अभियानाचा शुभारंभ होणार आहे. मार्च, एप्रिल आणि मे या 3ही महिन्यामध्ये मंडळ अधिकाऱ्यांच्या मुख्यालयामध्ये हे समाधान शिबिर होणार आहे. माझं आपल्या जिल्ह्यातील समस्त नागरिकांना विनम्र आव्हान असणार आहे की आपण या शिबिराचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा आणि ज्या ठिकाणी हे अभियान होत आहे त्या ठिकाणच्या नागरिकांनी, ग्रामपंचायतींनी या अभियानाच्या यशस्वीतेसाठी आम्हाला सहकार्य करावं. आंजहानी बाड़ा साहब ठाकरे की याद में शहर में तामीर की जा रही यादगार को मेयर समीर राजूरकर ने विज़िट की और यहाँ का कामों का जायज़ा लेने के बाद मुतल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी. एएमसी के ज़ेर तमाम क़ायम किए जा रहे आंजहानी बाड़ा साहब ठाकरे स्मृति वन उद्यान में जारी स्मारक प्रोजेक्ट का 4 मार्च को शहर के मेयर समीर राजूरकर ने मुआयना किया. इस मौके पर डिप्टी मेयर राजेंद्र जंजाड़, सिटी इंजीनियर संजय कोम्बले, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग्स विजय गौरे, गार्डन सुपरिंटेंडेंट विजय पाटिल, डिप्टी इंजीनियर बिल्डिंग्स कुमारी पूजा भोगे समेत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दीगर अफसरान और मुलाजमीन मौजूद थे. मुआयने के दौरान मेयर ने पूरे मंसूबे का जायज़ा लिया और मुतल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी. उन्होंने कहा कि आंजहानी बाड़ा साहब ठाकरे के कांसे से तैयार किए जाने वाले मुजस्समे के लिए बनाए जाने वाले चबूतरे का डिज़ाइन हवा के दबाव और दीगर तकनीकी पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए मुकम्मल तौर पर मेयारी बनाया जाए. मेयर ने मज़ीद हिदायत दी कि स्मृति वन के टॉयलेट ब्लॉक पर तकरीबन 40 kV सलाहियत के सोलर पैनल नस्ब किए जाएँ ताकि पूरे अहाते के लिए दरकार बिजली की फराहमी मुमकिन हो सके. इसी तरह बाग में मौजूद दरख्तों को पानी फराहम करने के लिए STP प्लांट के पानी को इस्तेमाल करते हुए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ज़रिए आबपाशी करने की हिदायत भी उन्होंने दी. मेयर समीर राजूरकर ने इस बात पर जोर दिया कि इस मंसूबे का काम आला मेयार के मुताबिक मुकम्मल होना चाहिए और इसके लिए IIT मुंबई के प्रोफेसर से तकनीकी रहनुमाई हासिल की जाए. AMC में इंसदाद तजावुज़ात ऑफिसर की तकर्रुरी और उसकी तख्लीक़ पर अपोजिशन लीडर अब्दुस्साजिद ने सख्त एतराज़ उठाया है. उन्होंने इस ज़िमन में डिविजनल कमिश्नर, ज़िला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है कि इस तरह का ओहदा ओहदा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रोस्टर पर मौजूद ही नहीं है, लिहाजा इस मामले की बारीकी से जांच की जाए. AMC के अपोजिशन लीडर अब्दुस्साजिद ने अपने ख़त में कहा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इस्टेब्लिशमेंट शेड्यूल में इंसदाद तजावुज़ात ऑफिसर का कोई ज़िक्र ही नहीं है. महाराष्ट्र म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट और सरकारी मुलाजिमत के क़वायद के मुताबिक किसी भी नए ओहदे की तख्लीक़ के लिए रियासती हुकूमत की पेशगी मंजूरी ज़रूरी होती है. सरकारी मंजूरी के बग़ैर ही ओहदा तख्लीक़ करके उस पर तकर्रुरी या इजाफी चार्ज देना क़ानून के ख़िलाफ़ है और इससे इदारे में माली व इंतज़ामी बेज़ाब्तगियों का ख़दशा पैदा हो सकता है. अपोजिशन लीडर ने अपने मकतूब में लिखा है कि इंसदाद तजावुज़ात अफसर के ओहदे को रियासती हुकूमत की मंजूरी हासिल है या नहीं, इसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाए. अगर इस ओहदे को सरकारी मंजूरी हासिल नहीं है तो मुतल्लिक़ा कमिश्नर और ज़िम्मेदार अफसरान के ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू की जाए. गैर क़ानूनी तौर पर ओहदा तख्लीक़ करने के नतीजे में होने वाले माली असरात का ऑडिट करवाया जाए. तहक़ीक़ात मुकम्मल होने तक इस तकर्रुरी या फ़ैसलों को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए. उन्होंने मज़ीद कहा कि ये मामला नहायत संजीदा नौइयत का है, इसलिए इस पर फौरी कार्रवाई की जाए और क़ानून का एहतराम बरकरार रखा जाए. इस मकतूब के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया में खलबली मची हुई है और आइंदा होने वाली पेशरफ्त पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं. वर्ल्ड लाइन डे के मौके पर घनसावंगी में महापारेषण और महावितरण में खिदमात अंजाम देने वाले लाइनमैन्स के एजाज़ में एक तकरीब मुनक़िद की गई. वर्ल्ड लाइनमैन डे के मौके पर घनसावंगी महापारेषण महावितरण दफ्तर में रोशनी के सफ़ीर यानी लाइनमैन हजरात का समाजी कारकुन धर्मेंद्र रामभाव घुघरे की जानिब से एजाज़ किया गया. इस मौके पर महावितरण के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मठपति, डिप्टी इंजीनियर संदीप पवार और दीगर कई सीनियर अफसरान मौजूद थे.
अपने खिताब में धर्मवीर रामभाव घुघरे ने कहा कि बस्तियों और वाड़ियों से लेकर वज़ीरों के बंगलों तक बिजली की बिला रुकावट और महफूज फराहमी को यकीनी बनाने वाले रोशनी के सफ़ीर यानी लाइनमैन अपनी जान को ख़तरे में डालकर अपनी ज़िम्मेदारियां निभाते हैं। अक्सर उन्हें सख्त धूप, सख्त बारिश और तेज़ हवा की परवाह किए बगैर अपना फ़र्ज़ अंजाम देना पड़ता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आइंदा महावितरण को अपनी खिदमात में बेहतरी लाने के लिए लाइनमैन के लिए 4 पहियों वाली गाड़ियों का इंतज़ाम करना चाहिए और 18 से 24 घंटों तक ड्यूटी देने वाले लाइनमैन की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखा जाना चाहिए। साथ ही उन्हें दरकार सेफ्टी किट भी जल्द अज जल्द मुहैया की जानी चाहिए। गुज़िश्ता दिनों डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर सविता सोनोने ने MIM के चंद कारपोरेटर्स के अलावा 30 से 40 नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ सरकारी काम में रुकावट डालने के इल्ज़ाम में एक शिकायत सिटी चौक पुलिस स्टेशन से की है। इस मामले पर म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत और अपोजिशन लीडर अब्दुल समीर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम सेक्शन 10 सेक्शन 10 एक ड के इसके अनुसार जब कोई भी नगर सेवक अपना निवडणूक के लिए पर्ची भरता है उसमें वो शपथ पत्र देना पड़ता है कि वो मुझे ये कायदे का एक ज्ञात है और इसके तहत अगर मैं कोई भी चीज़ फॉलो नहीं करूँगा तो मेरा नगर सेवक पद जा सकती है, मैं डिस्क्वालीफाई हो सकता हूँ। ये ज्ञात रहने के बावजूद कुछ नगर सेवक सम्मानित नगर सेवक हमारे जो कॉरपोरेशन के हैं तो हमारे अतिक्रमण विभाग की कार्यवाही में उन्होंने बाधा डाली। हमारे इस बाधा डालने के वजह से डिपार्टमेंट ने उन्होंने गुनाह नोंद कर दी और उस गुनाह में के अनुसार कुछ नगर सेवक का कहना है उस कार्यवाही में हम नहीं थे, वो भी हम जांच पड़ताल नहीं कर रहे, लेकिन जो भी होंगे और वो पुलिस भी अपने पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन हमारे पास वीडियो एविडेंस प्रूफ है जो कि पूरा महाराष्ट्र के पास हो गई, उन्होंने क्योंकि खुद ही उन्होंने एविडेंस बना के डाले हैं। तो इसके अनुसार आगे की जो कार्यवाही है कायदेशीर कार्यवाही सेक्शन 10 सेक्शन 11 सेक्शन 12 इसके अनुसार हम कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे। ये सभी सदस्य एक AIMIM पार्टी से है और वो लोगों ने वहाँ पे जाके हमारे अतिक्रमण टीम को बाधा डाली है अतिक्रमण निकालने में और उन्होंने हस्तक्षेप किया, ऐसा उनका डिपार्टमेंट का कहना है और उसके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। आई थिंक तकरीबन 40 लोगों पे है, उसमें कितने नगर सेवक हैं और कितने नगर सेवक नहीं हैं और कौन से नगर सेवक उनकी डिपेंडेंट हैं और कुछ नगर सेवक का उनका भाई है, कुछ पति हैं, कुछ बेटा है, तो वो हम उसका चौकसी कर रहे और जो 40 लोगों के ऊपर तो पैरेलली पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो कर ही रही है और लेकिन जो कॉरपोरेशन के महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम सेक्शन 10 एक ड तहत वो कौन से नगर सेवक और उनके जो रिश्तेदार हैं, वो जो डायरेक्टली रिश्तेदार है उनके खिलाफ एक कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। पार्षद के कहने पर हम नहीं करते, जो हर एक पार्षद जो है वो उनका कहने का पूरा अधिकार है और हम तो बोलते हैं कि जो तुम सही चीज़ रास्ते पे आके भी हमसे रुबाब से बोल ही सकते हो कि कोई पार्षद आके बोलना कि मेरे प्रभाग में जो ये अतिक्रमण हो रहा है ये जाहिर से निकालो, वो पार्षद का तो गलती नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो पार्षद बोलने के बाद कार्रवाई करने के टाइम पे अगर कोई हस्तक्षेप कर रहा है तो उसके हस्तक्षेप करने के बाद मेरे पास जो कायदा है अगर मैं वो इस्तेमाल ना करूँ तो फिर वो गलत होगा। वो आपको मीडिया को वो अट्रैक्टिव पॉइंट मिल जाता है, लेकिन हमारा हर दिन कार्रवाई होती रहती है। आई कैन गिव विद दैट एविडेंस, बट जब कोई एरिया में हो जाती है तो वो प्रायोरिटी आपको वहाँ पे ज़्यादा दिखती है। अदरवाइज रेगुलरली हम कार्रवाई अभी भी आपको अभी ये दे रहे हैं। कल कार्रवाई हुई थी क्या, शायद आपने कवर नहीं किया, लेकिन कार्रवाई होती है, लेकिन अलग अलग जगह पे कार्रवाई होती है। लेकिन जब एक पर्टिकुलर एरिया में ऐसा घटना घट जाती है तो वो वहाँ पे इमीडिएटली सभी फोर्सेस एक जगह पे आके कार्रवाई करते हैं। भाई मैं सबसे पहले तो ये एफआईआर को फेक मानता हूँ। मेरा ये दावा है कि ये जो तो बीजेपी और
शिंदे सेना के दबाव में आकर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने हम पर ये एफआईआर दाखिल की है। जबकि मैं जब स्पॉट के ऊपर गया था शाहगंज में, उसके पहले मैंने कमिश्नर साहब से चर्चा की थी और कमिश्नर साहब ने मुझे ये आश्वासन दिया था कि हम जो है तो हॉकर्स के लिए वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके देंगे। मैं वाउड़े को स्पॉट के ऊपर भेजूंगा, वो लाइन ड्रॉ करके देंगे, उसके बाद जो है तो वहाँ पर हॉकर जो है तो अपनी गाड़ियाँ लगा सकते हैं। काफ़ी घंटों तक इंतजार करने के बाद भी जब वाउड़े साहब नहीं आए तो हम स्पॉट के ऊपर पहुंचे और हमने जो है तो हॉकर्स को एक कोने में गाड़ी लगाने के लिए जो है तो वहाँ पर कहा, और साथ ही में ये भी कहा कि यहाँ पर अगर ट्रैफिक जाम होगा आपकी वजह से तो आपको सबसे पहले कॉर्पोरेशन से पहले हम यहाँ से हकाल कर जो है तो निकालेंगे। जब मैं कमिश्नर साहब के साथ चर्चा करने के बाद स्पॉट के ऊपर जाता हूँ तो मेरे ऊपर ऐसी जो एफआईआर की जाती है, मैं इसको इलीगल समझता हूँ। अगर मैं देखिए, जब मैं स्पॉट के ऊपर गया ना, वहाँ पर कोई अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं चल रही थी, कोई अधिकारी नहीं था। समीर साजिद बिल्डर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि तुमने किसी को जान से मारने की धमकी दी है, किसी को धक्का दिए, किसी को भुक्का दिए, किसी को गैर शब्द कहे, ये सारी बातें झूठी है। मेरे पास 10 ऐसे वीडियोज़ हैं जिसके अंदर मैं ये साबित कर सकता हूँ कि मैं अधिकारियों को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनको सर बोलकर बात कर रहा हूँ, उनको बड़े भाई बोलकर संबोधित कर रहा हूँ। यहाँ तक कि क्लास 4 ऑफिसर्स को भी मैं कह रहा हूँ कि भैया आप जाइए, हमारे कमिश्नर साहब से बात होगी। तो इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करने के बाद अगर मुझ पर यह एफआईआर की जाती है कि आपने जान से मारने की धमकी दी है, तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको कमिश्नर साहब, आज आप जो एक साबित कर दीजिए वीडियो के जरिए कि समीर साजिद बिल्डर ने ये कहा है, गाली देते हुए या किसी को जो है तो जान से मारने की धमकी देने का एक वीडियो आप वायरल कर दीजिए, मैं खुद जो है तो सियासत से संन्यास ले लूंगा। एक वीडियो ऐसा बता दीजिए जिसके अंदर समीर साजिद बिल्डर किसी भी अधिकारी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। एक वीडियो ऐसा बता दीजिए, मैं आज सियासत छोड़ने के लिए तैयार हूं। भाई मैं स्पेसिफिक कह रहा हूँ ना, मेरे नाम से एफआईआर है, फर्स्ट नेम इन द एफआईआर इज समीर साजिद बिल्डर ऑपोजिशन लीडर। उसके अंदर ये मेंशन है एफआईआर के अंदर कि समीर साजिद बिल्डर विरोधी पक्ष नेता यानी मन ले आए कि वाउड़े साहब जो भी तुम्हारा नाम है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर चलेगा तो कानून से चलेगा, जो है तो म्युनिसिपल के एक्ट से चलेगा। अगर समीर साजिद बिल्डर ये कह रहा है कि मानव म्युनिसिपल एक्ट से चलेगा तो ये गैर कानूनी बात मैंने कही है क्या? अगर मैंने ये कहा है कि वाउड़े साहब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके बाप की जागीर नहीं है तो मैंने गलत कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन न वाउड़े साहब के बाप की जागीर है न मेरे बाप की जागीर है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन औरंगाबाद शहर के आवाम की जागीर है और आवाम के लिए हम रोड के ऊपर आए थे। और हमको वाउड़े साहब को ये अल्फाज कहने की नौबत क्यों आई? एक अतिरिक्त आयुक्त, एक जो है तो एंक्रोचमेंट ड्राइव का जो है तो सदर ये कहता है मीडिया के ऊपर कि अगर कोई भी कॉर्पोरेटर रोड के ऊपर आया तो हम उसके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की जो तो कार्रवाई करेंगे। मैंने कमिश्नर साहब को भी ये पूरा मेरा विरोध दर्ज करवाया है कि एक एंक्रोचमेंट ड्राइव का सदर, एक एंक्रोचमेंट ड्राइव का अध्यक्ष जो है तो ये मीडिया के ऊपर कैसे कह सकता है कि कॉर्पोरेटर के ऊपर वो जो तो कार्रवाई करेगा? उसके पास वो ताकत ही नहीं है। अगर मेरा कमिश्नर, मेरा महापौर ये कहे कि समीर और कॉर्पोरेटर मैं आपके ऊपर कार्रवाई करूंगा डिस्क्वालिफिकेशन की, तो सर आंखों पे रखूंगा मैं मेरे कमिश्नर की बात को, मेरे महापौर की बात को। मगर एक एंक्रोचमेंट ड्राइव का अधिकारी हमको धमकी देगा? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप शहर के अंदर? आपके उन वीडियोस को पूरे शहर ने देखा, 4 लाख से ज्यादा लोगों ने मिलकर हमको चुन कर दिया है और वो 4 लाख लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि एक एंक्रोचमेंट ड्राइव का अधिकारी किस तरीके से आपको धमकियां दे रहा है। तो हमको भी शहर में जवाब देना है साहब। मैं तो कह रहा हूँ ना खुल के कि आयुक्त साहब जो है तो बीजेपी के और शिंदे गढ़ के पपेट बनकर काम कर रहे हैं, जबकि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। ही इज IAS ऑफिसर एंड ही शुड टेक अ स्टैंड फॉर दिस कॉर्पोरेटर्स। मेरा कॉर्पोरेशन, मेरे नगर सेवक और मेरा ये जो है तो AMC, हम एक परिवार है और हमारे परिवार के 2 बड़े हैं, एक कमिश्नर एक महापौर है। अगर हमारा घर के बड़े ही हमारे ऊपर अगर झूठे इल्जाम लगाने लगे और झूठी FIR दाखिल करने लगे तो मैं समझता हूँ ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। मेरा स्पष्ट जो है तो कमिश्नर साहब से भी और समीर भैया राजूरकर जो हमारे महापौर, उनसे डिस्कशन हुआ था कि एंक्रोचमेंट ड्राइव के लिए मैं बिल्कुल आपको सहयोग करने के लिए तैयार हूँ और मैं खुद चाहता हूँ कि पूरे शहर के अंदर एंक्रोचमेंट निकाले जाने चाहिए। मगर मेरा साथ ही में ये रिक्वेस्ट था कि हम एक जो है तो हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा मुल्क अलग अलग सभ्यताओं का मुल्क है। हमारा जो महाराष्ट्र है ये अलग अलग जो है तो धर्म जातियों को सबको समेटे हुए चलने वाला एक महाराष्ट्र है। यहाँ पर हर धर्म को सभी धर्म के लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। तो जब रमज़ान का पाक महीना चल रहा है तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि रमज़ान के महीने तक रुक जाइएगा, बासी ईद से आप दोबारा जो तो आपके एंक्रोचमेंट ड्राइव स्टार्ट कर दीजिएगा और पूरे शहर के अंदर, सिर्फ मुस्लिम एरिया के अंदर ही नहीं, हर एरियाज के अंदर स्टार्ट मुस्लिम एरिया से करो, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। मगर पूरे शहर के अंदर ये एंक्रोचमेंट ड्राइव चलनी चाहिए और हर इलीगल मकान, दुकान, टीन शेड, हर चीज़ निकलनी चाहिए। इसके लिए मैं
जो तो प्रतिबंध हो, और इसके लिए हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं। आज की बैठक आज देखिए, मैं औरंगाबाद शहर के आवाम को ये कह रहा हूँ कि आपके टैक्स के पैसे से जनरल बॉडी होती है, और जनरल बॉडी लेने के लिए हजारों लाखों रुपए 1 GB लेने के लिए खर्च किए जाते हैं। अब जब आपके टैक्स के जो है तो लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं एक जनरल बॉडी लेने के लिए, तो जनरल बॉडी के अंदर आपका मुद्दा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आज शहर के अंदर हॉट मुद्दा है कि भाई कुत्तों का जो आतंक शहर के अंदर चल रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं, वो मुद्दा जो है तो कॉर्पोरेशन को हम कह रहे थे कि महापौर साहब को और कमिश्नर साहब को कि वो मुद्दा आप लो और उसके ऊपर चर्चा करो। देखिए, कॉर्पोरेशन ने 1.5 करोड़ रुपए खर्चा की पिछले 3 साल के अंदर, काहे के लिए? तो कुत्तों की नसबंदी करने के लिए। कॉर्पोरेशन का कहना है कि हमने 15,000 कुत्तों की नसबंदी कर दी है। साथ ही में ये भी कॉर्पोरेशन का कहना है कि जो 15,000 कुत्ते हुआ करते थे आज वो 70,000 हो गए। तो मेरा कमिश्नर साहब को ये सवाल है कि आपने 1.5 करोड़ रुपए जो कुत्तों की नसबंदी के लिए खर्च किए, कुत्तों की ही नसबंदी की या किसी और की कर दिए? इनकी तादाद कैसे बढ़ गई कुत्तों की? और कुत्तों के वैक्सीनेशन के ताल्लुक से देखिए, शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर आपने ही ये शूट किया है कि जो है तो कुत्ते जो है तो बच्चों को काट रहे हैं। जब कुत्ते बच्चों को काट रहे हैं तो बच्चों को उसके वालदा जब हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तो घाटी के अंदर आज कुत्तों का वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, ORS के इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। जब हमने डीन से सवाल किया तो डीन ने क्या कहा कि हमको जो है तो कॉर्पोरेशन की तरफ से इंजेक्शन मिले ही नहीं है, हम इंतजार में है कि वो इंजेक्शन देंगे तो हम जो है तो यहाँ पर लोगों को जो है तो सुविधा प्रदान कर सकेंगे। इसके साथ साथ पानी का मुद्दा है। पानी के मुद्दे के ऊपर हम चाह रहे थे कि भाई आज की जीबी में कुछ तो भी बात हो, मगर आज की जीबी में सिवाय स्टैंडिंग कमेटी और 5 दूसरे कमेटी, जिसके अलावा कोई मुद्दे के ऊपर बात नहीं हुई। आवाम का, औरंगाबाद शहर के आवाम का पैसा जो आप टैक्स पे कर रहे हैं, वो पैसा ये हराम में डाल रहे हैं, और ऐसी मीटिंग्स लेकर पब्लिक का भला करना छोड़ के खुद का भला करने में लगे हुए हैं। थैंक यू। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत पर आज शहर में मुनक़िद किया गया ताज़ियती इजलास। सभी मसालिक के उलमाए किराम और दानिशवरान कौम ने किया हाज़रीन से खिताब। स्टैंडिंग कमेटी और दीगर ज़ैली कमेटियों के अरकान के इंतखाब के लिए जनरल बॉडी मीटिंग मुनक़िद। ग्रुप लीडर्स के सिफारिश करदा कारपोरेटर्स की गई नामजदगी। औरंगाबाद जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व समाधान शिविर का कर दिया गया आगाज। सर्कल सतह पर मुनक़िद किए जाएंगे 84 कैंप्स। शहरियान से इस्तेफादा उठाने की जिला कलेक्टर ने की अपील। और डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर सविता सोनोने की जानिब से MIM के चंद कारपोरेटर्स और दीगर अवाम के खिलाफ सरकारी कामों में रुकावट के इल्ज़ाम में दाखिल करदा शिकायत पर म्यूनिसिपल कमिश्नर और अपोजिशन लीडर आमने सामने। कार्रवाई होकर रहेगी, म्यूनिसिपल कमिश्नर का दावा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।